So let us discuss uh, the syllabus of electronics for NET examination, whose weightage varies from 25 to 35 marks in NET. GATE examination 6 to 10 marks. This is the most probable weightage for the examination as per NET. कभी 6 भी आ जाता है, कभी 8 भी आ जाता है, कभी 10 भी आ जाता है. वेटेज तो बदलती ही रहती है. Now, so the entire syllabus I have classified into 3 subheadings. This is what the total syllabus what I'm going to classify. The very first part, that is nothing but simply digital part. The second part, that is analog part. Another part, last one, that is nothing but simply एक्सपेरिमेंटल पार्ट. तो पूरे सिलेबस को अगर आप बांटें तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सिलेबस. एक डिजिटल का पार्ट हो जाएगा, एक एनालॉग का पार्ट हो जाएगा और एक एक्सपेरिमेंटल का पार्ट हो जाएगा. तो डिजिटल हम लोग इस तरह से देखते हैं. ये देखिए, तो सबसे पहले जो डिजिटल में देखिए जरा से, लेट अस डिस्कस विथ बूलियन अलजेब्रा, देन वी विल डिस्कस विथ K-map, then we will discuss with logic gates. Next we will discuss with logic circuits, then we will discuss with ADC, analog to digital converter, and digital to analog converter and its characteristics. Next, once again we will discuss with one topic that is called as number system. Then last one we are going to discuss with logic families. Once I complete this part explanation, then I'll proceed with the analog, so that the things will be more clear. If I write the entire syllabus at a time, then it will be very difficult to explain further. So what I'm going to do is, first of all, I'm explaining the syllabus of the digital, then I'll explain the syllabus of the analog, then I'll proceed for the experimental part. Is it clear? So in case of Boolean algebra and K-map, these are the methods of this is called as minimization. ये जो method है ये मिनिमाइजेशन की मेथड है. मतलब इनसे यूज करके बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उनको आप मिनिमाइज कर देते हैं. काम दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है जो दूर करेगा K-map से. दैट्स व्हाई इट इज मोर एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू Boolean algebra. Is it clear or not? Larger expressions will be given. You have to minimize this. Is it clear? Now let us discuss with the logic gates. See here, logic gates in our syllabus broadly classified under 3 subheadings. One is nothing but simply called as a basic gate that you are studying from class 12th. Then you have to proceed for, that is nothing but simply universal gate, which are applicable to everywhere. You can apply this universal gate anywhere in the digital electronics. It will fulfill the requirement. Is it clear? One more logic gate is there in our syllabus, that is called as arithmetic gates. Is it clear? So this is what the classification of the logic gates broadly I have done. Is it clear? In case of basic gate, you are studying from your 12th class. This is NOT gate. Next this is nothing but simply AND gate. Next this is nothing but simply OR gate. These are the basic gates. Is it clear? Next we will discuss a universal gate. Universal gate, there are 2 gates only, that is nothing but simply called as NAND and NOR. Why they are called as universal? Now only I have told you, it will fulfill the requirement of everything in the digital electronics. That's why it is called as universal. Everywhere it can be best suited. Is it clear or not? That's why they are called as universal. In case of arithmetic, we are including 2 gates. One is nothing but simply XOR and another is nothing but XNOR. And most of the time questions are asking from here. This is the very important crucial part for the examination as well as for the NET examination as well as for the GATE examination. I hope you got the idea. Clear? तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है देखिए ज़रा से नेट में इसी से आते हैं.
अच्छा, इनको अर्थमेटिक के दर्जे में रखा गया है। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिक्स हो गया, तो इनको जो है मैथमेटिक्स के दर्जे में इसलिए रखा गया है क्योंकि डिजिटल में है तो डिजिटल, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिकल कार्यवाही अगर कुछ भी करते हैं, जैसा मान लीजिए एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ये मैथ होता है, मैथ को अर्थमेटिक भी बोलते हैं। तो इनमें अगर कोई भी कार्यवाही करनी है और उसको डिजिटल में शो करना है, तो मतलब डिजिटल सर्किट से अगर शो करना है, तो उसमें या तो एक्सॉर गेट लगता है या तो एक्सनॉर गेट लगता है, इसलिए इनको जो है हम लोग अर्थमेटिक के दर्जे में रखते हैं। वेरी एप्लीकेटिव पार्ट, लास्ट टाइम भी नेट एग्जामिनेशन में आया था पैरिटी चेकर के नाम से, आप लोग अगर पेपर दिए होंगे तो दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पार्ट। लॉजिक गेट के इस्तेमाल से आप जो सर्किट बनाएंगे उन सर्किट को कहा जाएगा लॉजिक सर्किट। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर है। यहाँ पर लॉजिक गेट के यूज से हम जो सर्किट बनाएंगे, दो सर्किट्स आर कॉल्ड एज लॉजिक सर्किट। फिर लॉजिक सर्किट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट, another is called as it is nothing but simply sequential circuit। मतलब बात ये है तो लॉजिक गेट एक सर्किट बनाया, वो सर्किट दो हिस्सों में बट गए। जब चीज एक ही है, इस्तेमाल भी एक ही चीज किया है, गेट इस्तेमाल किया है, गेट इस्तेमाल करके सर्किट बनाया, तो फिर सर्किट दो हिस्सों में क्यों बट गए? आई होप यू गॉट द लॉजिक, क्लियर। जब चीज एक ही था, सर्किट भी वही बन रहा, तो फिर एक ही रहने देते, कैटेगरी दो कैटेगरी क्यों हो गया, वो यहाँ देख लिए जरा सा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉम्बिनेशनल सर्किट, here I am writing it is nothing but sequential circuit। For example, ये एक ब्लैक बॉक्स मान लीजिए, ये एक ब्लैक बॉक्स मान लीजिए, ये वाला इनपुट हिस्सा है, ये वाला आउटपुट हिस्सा है, ये वाला इनपुट हिस्सा है, ये वाला आउटपुट हिस्सा है। नाउ मान लीजिए इसमें गेट इस्तेमाल करके ही आपको सर्किट बनाना है, तो इसमें भी गेट लगे हैं, इसमें भी गेट लगे, कैसे लगे हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड गेट लगा है, गेट तो लगा है। दो सर्किट बन गए, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। ये वाला हिस्सा इनपुट माना जाता है, ये वाला हिस्सा आउटपुट माना जाता है, ये इनपुट माना जाता है, ये आउटपुट माना जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये तो ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तार ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तार जो आप कनेक्ट करते हैं आउटपुट से इनपुट की तरफ, उस कनेक्शन को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इसका मतलब ये है, सीक्वेंशियल सर्किट में हमेशा एक फीडबैक दिखाई देगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट में वो चीज नहीं होगी, मतलब फीडबैक नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर में मान लीजिए प्लस करते हैं, तो प्लस में आप जब 5+2 का बटन दबाते हैं तो 7 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके बाद 6+3 दबाते हैं तो 9 आ जाता है। तो 9 आने के लिए 9 7 का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 7 बोलेगा तब हम 9 दिखेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 7 से कोई मतलब ही नहीं है, 6+3 दबा दीजिए 9 आ जाएगा, 9+2 आप दबा दीजिए 11 आ जाएगा। इस 9 से क्या मतलब, जो बीत गया वो बीत गया। इसका मतलब एक बात ये है, 11 दिखने के लिए 9 का कोई जरूरत नहीं है, 9 दिखने के लिए 7 का कोई जरूरत नहीं, मतलब पुराने वाले का कोई मतलब नहीं है। अगर पुराना वाला नहीं चाहिए तो एक तरह से पुराना यूजलेस है, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है तो फिर इसको तो मेमोरी लेस बोलेंगे। फिर तो इसका मतलब जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होंगे जिनमें फीडबैक नहीं होगा वो मेमोरी लेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इनपुट देंगे, आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट इस रस्सी से ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के पीछे आएगा। फिर अब जो नया वाला आउटपुट मिलेगा वो पुराने वाला ऐसे घूम के गया तभी तो मिला है। इसका मतलब पुराने वाले का एक तरह से इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब इस सर्किट ने पुराने वाले को याद रखा होगा तभी तो इस्तेमाल किया होगा। और अगर पुराने वाले को याद रखा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, मेमोरी। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट इज, इसमें फीडबैक नहीं होगा, इसमें फीडबैक होगा, ये मेमोरी लेस हो जाएगा, ये वाला मेमोरी हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। फिर तो इसमें हम लोग को एग्जांपल पढ़ने हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप भी अपने बीएससी एमएससी में पढ़े भी होंगे, हाफ एडर के नाम से पढ़े होंगे, फुल एडर के नाम से पढ़े होंगे, सब्सट्रैक्टर भी पढ़ा होगा आपने, इसका सब्सट्रैक्टर भी पढ़ा होगा। फिर आप लोग जो है इसका मल्टीप्लेक्सर पढ़े होंगे, लास्ट टू लास्ट नेट एग्जामिनेशन में आया भी था। फिर उसके बाद आप लोग डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग एनकोडर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है डिकोडर भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पैरिटी चेकर पढ़ेंगे। पैरिटी चेकर तो लास्ट टू लास्ट नेट एग्जामिनेशन में आया भी था। एक और पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज पैरिटी generator. We will discuss parity generator. Then we will discuss comparator. नेट एग्जामिनेशन 2016 में आया था कंपेरेटर। एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा।
डीमल्टीप्लेक्सर और इनकोडर एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, क्लियर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड दिस ऑल वी विल डिस्कस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सीक्वेंशियल सर्किट जब भी आप पढ़ो उसको हमेशा जो सबसे पहला सर्किट सीक्वेंशियल में पढ़ा जाएगा उसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। इज इट क्लियर? तो सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब मेमोरी हो गया। तो मेमोरी को जब भी याद किया जाएगा, मेमोरी को जब भी याद किया जाएगा तो उस केस में सबसे पहला जिसका नाम पढ़ा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप, क्लियर। तो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करके इसमें दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली। फ्लिप फ्लॉप के जरिए से दो चीज बनाया जाएगा, एक आपका है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर, अनदर इज कॉल्ड एज इट इज नथिंग बट सिंपली काउंटर। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा नहीं है कि फ्लिप फ्लॉप दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फ्लिप इधर चला जाएगा, फ्लॉप इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करके दो चीज पढ़ना है, रजिस्टर, काउंटर। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, ये सर्किट्स, इतने सर्किट, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का हिस्सा है, ये भले ही सब नाम अलग अलग है, लेकिन इनमें खासियत अगर ढूंढा जाए तो एक खासियत सब में होगी कि किसी का भी आउटपुट और इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये भले ही अलग है, काउंटर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें खासियत ये होगी कि सबका आउटपुट जो है इनपुट से कनेक्शन होगा, मतलब इन सब में फीडबैक होगा और इनमें फीडबैक नहीं होगा, क्लियर। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है नेट एग्जामिनेशन में, अक्सर आता ही है नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काउंटर वगैरह से। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे 3 hours exhaustively we will discuss. In that 3 hours I will try to make you to remember 3 to 4 lines. Those 3 to 4 lines are necessary, are sufficient to discuss this entire. अगर वो 3-4 लाइन आपको याद है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे। देखिए एक्चुअल में इसको पढ़ने का तरीका, देखिए यहाँ तक तो लगभग लोग ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, लेकिन मेन तो यहाँ याद रखने के लिए होता है ना। तो यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कम से, मतलब पढ़ें तो सब कुछ, कम से कम चीज याद रखें, और बाय यूजिंग मिनिमम थिंग वी शुड एक्सप्लेन द मैक्सिमम, क्लियर है। पर देखिए सब पढ़ाना जरूरी नहीं होता है नेट में, कम पढ़ के उसको कैसे आप पेपर पर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, लंबे समय तक आपको याद रहता है, वो सबसे बड़ा मेन रिक्वायरमेंट होता है। आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर। देखिए जरा सा, सबसे पहली बात यह है, एक ही एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और एक ही डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर नहीं है, बहुत सारे सर्किट हैं। हमारे सिलेबस में जो है 2-4 सर्किट का नाम एक्सप्लेन्ड है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमको जो है 2-4 चीज पढ़नी है। देखिए, तो सबसे पहली बात, एनालॉग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दैट इज नथिंग बट सिंपली यू रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड एनालॉग लाइक दैट फॉर एनी वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज 5। ये एनालॉग है। अगर हम इसको बाइनरी में लिख दें डिजिटल वैल्यू में तो 101 इसका डिजिटल हो गया, या तो उल्टा कर लीजिए, 101 का 5 कन्वर्ट कर दीजिए तो डिजिटल से एनालॉग हो गया। अब होता क्या है, 5 एक्चुअल में 5 नहीं होता बल्कि वोल्टेज के टर्म में होता है। अभी आप अगर रोड से जाइए, रोड के किनारे में जाइए तो इलेक्ट्रिक का पोल होता है, उस पर एक ऐसे प्लेट लगा होता है, और आपने देखा भी होगा इस तरह से, लाइक दैट, कंकाल टाइप का, लाइक दैट, यहाँ पर ऐसे like that, and here it is written 50 hertz 220 volt, like that it is plate पे लिखा होता है ना इलेक्ट्रिक पोल पे। अब इसको देखिए जरा सा, what happens here once you go like that, though it is written 220 volt in your house, आपके घर पे 220 वोल्ट नहीं पहुंचता, हार्डली 180 190 लॉस हो जाता है ना सर। उसी तरह जैसे आप यहाँ 5 वोल्ट लिखते हैं, तो ये आप लैब अगर किए होंगे, डीसी जनरेटर अगर आपने देखा होगा, तो 5 वोल्ट आप सेटअप कर भी दें तो 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, वो अपने आप रिड्यूस होकर 4.9 आ जाएगा, 4.999 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं रहेगा, ये तय है। अब मेरे कहने का मतलब यह, आना तो 5 के लिए 101 था, लेकिन आएगा किसके लिए 101? 4.9 के लिए। तो डेफिनेटली इसमें एरर हो गया थोड़ा सा, 101 का उल्टा कन्वर्ट करें तो 5 आना था, लेकिन 101 का 4.9 दिखाई देगा, एरर हो गया। अच्छा, हर कन्वर्टर जो है 4.9 नहीं दिखाएगा, कोई 4.99 भी दिखाएगा, कोई 4.999 भी दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हर कन्वर्टर में एक जैसी एरर नहीं है, किसी में कम भी है, किसी में ज्यादा भी है। तो जो कम एरर दिखा रहा है उसकी ज्यादा अच्छी खासियत है, जो ज्यादा एरर दिखा रहा है वो कम खासियत वाला है। तो खासियत भी वेरी करता है एरर के हिसाब से। अच्छा, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि ये 4.999 के लिए 101 दिखा रहा, और ये 4.9 के लिए 101 दिखा रहा, तो ये कम एक्यूरेट हो गया। तो जिसकी ज्यादा एक्यूरेसी है वो उसकी खासियत ज्यादा है। तो यहाँ पे खासियत कैरेक्टरिस्टिक मेन डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, क्लियर। नंबर सिस्टम वेरी सिंपल टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर। अच्छा, लॉजिक फैमिली के बारे में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ लॉजिक फैमिली। तो लॉजिक फैमिली का मतलब मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, लॉजिक गेट तो पढ़ चुके हैं, यहाँ टीचर क्या पढ़ाएगा, इस तरह सिंबल बना देगा,
ये ए है और ये बी है, आंसर लिख देगा ए डॉट बी एंड गेट। यहाँ पर भी हम लोग जो है एंड गेट ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एंड गेट कभी जो है हम लोग ट्रांजिस्टर से बनाएंगे, यहाँ एंड गेट कभी हम लोग जो है डायोड से बनाएंगे, यहाँ एंड गेट कभी हम लोग जो है एफईटी से बनाएंगे। क्लियर है? मतलब यहाँ पर बना तो एंड गेट रहे हैं, यही बना रहे हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर यूज कर लिया, ट्रांजिस्टर मतलब एफईटी या बीजेटी दोनों में से कोई भी हो गए, डायोड यूज कर लिया। अब एक बात बताइए जरा, सब बना तो मोबाइल ही रहे हैं, लेकिन कभी सैमसंग से बना रहे हैं, कभी सोनी एरिक्सन से बना रहे हैं, कभी नोकिया से बना रहे हैं, तो बात तो सभी कराते हैं, एंड तो ये सभी कराएंगे, बस सोनी में जो खासियत होगी हो सकता है वो सैमसंग में ना हो, जो एप्पल में हो वो किसी और में। तो बेसिकली हम यहाँ जो है अगर एप्पल की बात कर रहे हैं तो अलग टेक्नोलॉजी है, सोनी एरिक्सन की बात कर रहे हैं तो अलग टेक्नोलॉजी है। तो मेनली हम टेक्नोलॉजी डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पढ़ा तो एंड गेट जाएगा, लेकिन एंड गेट तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एंड गेट को बनाने वाली technology discuss कर जाएगी। We are going to discuss the technology how to develop the AND gate. If there is some technology, then diode may have some advantage, some disadvantage. Transistor may have some disadvantage, some disadvantage. So we are going to discuss mainly advantages and disadvantage by using different technologies. I hope you got the idea. Clear है यहाँ पर बात समझ में? आगे चलते हैं। Now, so I hope you got the clear-cut picture about this part. Is it clear or not? Now let us discuss here the analog part. अगर आप डिस्कस करिए तो इसमें बेसिक लूप एनालिसिस, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड बेसिक। देखिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, नेट एग्जामिनेशन पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको इस्तेमाल करके आपको डायोड यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करके ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करके ओप एम्प का इस्तेमाल करना। तो ये तो एक टूल है, ये मैथमेटिक्स एक टूल है जिसको यूज करके फिजिक्स पढ़ा जाएगा। तो उसी तरह जो है ये एक टूल है जिसको यूज करके बाकी सारी चीजें पढ़ी जाएगी। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे junction theory, how junctions are formed between the two different types of materials. In that case we are going to start the first basic, we will see a PN junction diode, then we will discuss this is nothing but simply we will discuss Zener diode. ये दोनों है तो PN junction diode ही, थोड़ा सा फर्क है जिसलिए नाम बदल गया है Zener diode, थोड़ा सा फर्क है जिसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी PN junction बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे that is called as LED, then we will discuss here it is nothing but simply photo diode। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है ऐसा कभी नहीं होगा कि एलईडी को अगर पढ़ा जाएगा तो फोटो डायोड छोड़ दिया जाएगा, फोटो डायोड पढ़ा जाएगा तो एलईडी को छोड़ दिया जाएगा। एलईडी बिना फोटो डायोड के अधूरा है, फोटो डायोड बिना एलईडी के अधूरा है। क्लियर है? यहाँ पर एलईडी का मतलब लाइट भेजेगा, लाइट एमिशन, लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ फोटो डायोड का मतलब एक नाम और भी होता है, फोटो डिटेक्टर। फोटो का मतलब लाइट, डिटेक्टर। तो ये लाइट जो एमिट होगा तभी तो डिटेक्ट होगा। तो एलईडी अगर एमिट करेगा तो उसको लेने के लिए फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पढ़ के ये नहीं पढ़ के ये। तो एक को पढ़ना है तो दूसरा पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट आइए। अच्छा फिर हम लोग ये देखेंगे अगर ये सब पीएन जंक्शन डायोड ही है तो नाम क्यों अलग अलग बदल गया। क्लियर? सभी को फिर पीएन जंक्शन डायोड ही बोल के छोड़ देते, ऐसा तो नहीं बोला सबको इसको अलग दिया, इसको अलग नाम दिया, इसको अलग नाम दिया। What is the reason behind we are using like that? Clear है यहाँ पर? तो we will discuss also that part also. Next we will discuss here BJT, bipolar junction transistor and its application as an amplifier. तो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन, अच्छा एक बात है, पहले डायोड बना फिर उसके बाद जो है सेकंड मार्केट में जो आया है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आया है। तो इसमें जो खासियत होगी वो डायोड वाली खासियत तो इसमें होगी ही होगी, लेकिन एक एडिशनल खासियत उसकी है कि ये एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है। आपने कभी डायोड एज एन एम्पलीफायर नहीं सुना होगा, है ना? तो बीजेटी एज एन एम्पलीफायर तो होता है। क्लियर? तो वी विल डिस्कस बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट इसमें कुछ डिसएडवांटेज रही होगी तो फिर नया आ गया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो अब इसमें नाम ही बोलता है, देखिए बाइपोलर, दो पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब समझ लीजिए दो ख्याल के लोग,
तो दो ख्याल के लोग होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर, तो उसीलिए नया आया, सब एक ही कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोलैरिटी। क्लियर, इसको यूनिपोलर भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझना। तो दो पोलैरिटी थे, झगड़ा हमेशा था इसमें आपस में, तो वो खत्म करने के लिए यूनिपोलर लाया गया है। क्लियर, तो वी विल डिस्कस दैट पार्ट वेरी इजीली। ये तो गेट एग्जामिनेशन में आया भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिपोलर डिवाइस। तो FET इज ए यूनिपोलर डिवाइस, FET इज ए यूनिपोलर डिवाइस। नेक्स्ट, उसके बाद जो है वी विल डिस्कस दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर? तो ये देखिए, इसमें जो है नाम एक्चुअल में ओपैम्प है, लेकिन सारी परिस्थितियों में ओपैम्प एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता, अलग अलग भी काम करता है। क्लियर, तो इसके नाम में हमेशा एम्पलीफायर भले ही लिख दिया गया हो, लेकिन इट इज नॉट द ट्रू नेम ऑफ द एज एन एम्पलीफायर। इट वर्क्स समटाइम्स नॉट एज एन एम्पलीफायर। क्लियर, एंड नॉट sometimes, most of the time it is working as a non amplifier. Only in one circumstance it is working as an amplifier. I hope you got the idea. Clear? तो ये है, तो ये इसकी खासियत है, कभी इसका एम्पलीफायर की तरह काम कर जाना, कभी इसका एम्पलीफायर की तरह ना काम करना। तो इट इज द क्या बोलते हैं आपका, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है वो कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, आपको पहचानना होता है कि वो सर्किट जो आपके सामने गिवन है वो एम्पलीफायर की है या नॉन एम्पलीफायर की है, और अगर वो नॉन एम्पलीफायर की है तो उसमें वो कैसे काम करेगा, और अगर वो एम्पलीफायर है तो फिर उसमें क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, कौन सा फीडबैक है, आपको एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद एक टॉपिक हमारा सिलेबस में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। अच्छा, ऑसिलेटर मीन्स which is going to produce oscillation like that. Oscillation, is it clear? If it is an oscillation, then it is having some time period waveform. If it is having some time period, then it is having some frequency also. Time period means inverse of time period frequency. So if it is having some frequency, then frequency may be high frequency, frequency may be low frequency. It depends. I don't know whether it is which one will be high frequency, which one will be low frequency. Then definitely some frequencies may be higher frequency, some frequencies may be lower frequency. So in our syllabus, oscillator means basically in our syllabus we have to discuss sine wave production oscillator, and that oscillator depends on frequency, classified as high frequency as well as low frequency. High frequency, our syllabus, one is nothing but simply called as Hartley oscillator, another is called as Colpitts oscillator. यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों को, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक सर्किट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट। आपने सुना भी होगा, जो बहुत मशहूर है LC ऑसिलेशन के नाम से। आई होप यू माइट रिमेम्बरिंग दैट इन योर PG days। LC ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग टैंक सर्किट भी बोलते हैं। ये सर्किट का एप्लीकेशन है यहाँ पे, और ये TIFR 2014 में पूछा भी गया है। टैंक सर्किट पे जो एक चार्ज क्यों रखा गया था, और पूछा था कौन पहले डीके कर जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। वी विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो हियर। इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, वन ऑसिलेटर वी हैव टू डिस्कस, दैट इज नथिंग बट we have to discuss in this case RC, phase shift oscillator, and here we have to discuss that is nothing but simply called as Wien's bridge oscillator. These two oscillators we have to discuss. These are basically a low frequency oscillator, these are basically high frequency oscillator. These oscillators we have to discuss. One more thing here, these questions are asked in, this question asked in NET examination 2012, this asked in GATE 2008 और 9 I think। ये दोनों अभी तक नेट में नहीं आए हैं। क्लियर, तो अभी उम्मीद है कि आ जाए, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, आगे चलते हैं। वन मोर स्मॉल पार्ट इज देयर, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल पार्ट। देखिए, इसमें जो एक डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज एरर, uncertainty, curve fitting. Here mainly you have to discuss linear fitting. Next, one more we have to discuss here, test, that is chi-square
test. It can also be written like that, chi-square test. So this is what the test what we have to discuss here. So in case of experimental part, error means, for example, you have attempted the examination of 100 marks in total, you got 90 marks. It means you didn't got 10 marks, you got 90 marks. Clear? So 10 marks you have done some error, that's why you lost that mark. So it's kind of you have deviated with some maximum mark. Clear? So deviation is nothing but simply called as error. So यहाँ पर error, different types of error also, deviation is called as error. A lot of errors are there. One is called as absolute error. Another is called as that is nothing but simply called as limiting error. Another is called as percentage error. Another is called as relative error. Another is called as RMS error. Different types of errors are there asking in the examination, so we will discuss. Clear है यहाँ पर? So absolute error is there, limiting error is there, percentage error is there, relative error is there, RMS error is there. A lot of errors are there. Clear? So we have to discuss in the as per examination point of view. और एक बात ये ध्यान से रखिए कि इसमें से एक क्वेश्चन हर बार रहता है, एरर का एक क्वेश्चन डैम श्योर रहता है. अच्छा, अनसर्टेनिटी मतलब अगर आपसे कोई पूछे इस तरह से, हाउ मच यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, इट मींस हाउ मच यू आर सर्टेन अबाउट योर आंसर, हाउ मच यू आर नॉट सर्टेन, अनसर्टेन अबाउट योर आंसर, मतलब मैं पक्का नहीं बोल सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. तो अनसर्टेनिटी इज नथिंग बट सिंपली रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी. क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर की प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है तो एरर की बात ही होगी. यहाँ प्रोबेबिलिटी जो चेक किया जाएगा एरर के ताल्लुक से चेक किया जाएगा. क्लियर है यहाँ पर? तो इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिस्टिक एरर भी कहा जाता है. क्लियर है यहाँ पर? तो अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक एरर. आई होप यू गॉट द आइडिया. यहाँ देखिए जरा सा नेक्स्ट, कर्व फिटिंग. कर्व फिटिंग का मतलब क्या है ये देखिए जरा सा. तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये x है और ये y है. Infinite number of points I have taken like that, like that, like that. I don't know how I have taken points are taken like. If I join all these like that, then it will be a zigzag pattern. लेकिन हम चाहते हैं कि zigzag न रहे, approximately straight line बन जाए. तो हम एक straight line on an average इस तरह से बनाएंगे कि बाकी सारी पॉइंट जो है इस लाइन से कम दूरी पे हो. तो ऑलमोस्ट मेरा ग्राफ कैसा बन गया? लीनियर बन गया. तो किसी भी कर्व को ऑलमोस्ट किस अंदाज में करना बताइए जरा सा? लीनियर में. आई होप यू गॉट द आइडिया. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लीनियर पैटर्न, लीनियर फिटिंग. कर्व फिटिंग को लीनियर फिटिंग भी बोलते हैं. और बेसिकली ये टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे सिलेबस में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि सिलेबस में गिवन भी है. नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर एक और चीज, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज chi-square टेस्ट. ये तो फिटिंग है और यहाँ टेस्ट है. आदमी इम्तिहान देता है, पास हो या तो फेल हो, है नहीं? तो यहाँ तो सवाल पास या फेल का होगा. क्लियर? यहाँ पे मतलब किसी चीज को टेस्ट करना, वो लायक है भी या नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं, डाइस हमने खेला, लूडो खेला. तो लूडो में ऐसा बना होता है, देखिए जरा सा, इट इज क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बैक साइड पे 6 भी होगा. इस तरह डॉट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं और आप मान लीजिए लूडो खेल में, आपको भी 10 बार मौका दिया गया, हमको भी 10 बार उछालने का मौका दिया. आपका तो 10 का 10 6 गिरा, मेरा एक भी 6 नहीं गिरा. आप इतना खुश नसीब तो नहीं हो सकता कि आपको 10 का 10 6 गिरा और मेरा एक भी न गिरा, है नहीं? तो जाहिर सी बात है ये इसलिए गिरा कि हो सकता है आपने कुछ चीटिंग किया हो. बात समझ में आया? तो कुछ हद तक चीटिंग है, या मतलब आपका 6 बार 6 गिरा और मेरा 4 बार 6 गिरा तो कोई बात नहीं, इतना तो कम ज्यादा चलता है. लेकिन मेरा एक बार भी नहीं गिरा और आपका सब गिरा, तो फिर वो तो थोड़ा सा चीटिंग है. क्लियर? तो यहाँ पर टेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि ये जो डाइस है, इट इज अलाउड टू प्ले और नॉट. क्लियर है? यहाँ पर ये बोला जाएगा कि ये डाइस जो है अलाउएबल है, खेलने लायक या नहीं है. क्लियर? तो ये टेस्ट ये बताएगा, डाइस ही नहीं, कोई भी चीज. मान लीजिए एग्जाम हुआ, आप पास हैं या फेल है, कंपार्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, या तो अलाउ होगा या तो नहीं होगा. आई होप यू गॉट द आइडिया. दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. We are going to discuss in 70 hours. We will try to complete almost the entire syllabus. तो इसमें हम लोग पढ़ने का जो ट्रेंड रहेगा वो कैसे रहेगा वो देख लीजिए जरा सा. फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक दो न्यूमेरिकल तो साथों साथ कर लेंगे जो एग्जामिनेशन में आया है. फिर एक पूरा कंप्लीट आपका जो है जब कोर्स खत्म होगा तो प्योर न्यूमेरिकल सेशन चलेगा, तो आप उसको जो है एक बार आप देख लेना. क्लियर है? यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारा न्यूमेरिकल साथों साथ करवाएंगे, मतलब ये टॉपिक है तो इस पे जो एक दो न्यूमेरिकल आए हैं वो करवा देंगे. जैसे ही ये कंप्लीट खत्म होगा तो एक न्यूमेरिकल की कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी वीडियो सॉल्यूशन ही होगा.
आप उसको चेक कर लो, आप उसको कर लो. I hope you got the idea. I hope no doubt regarding the syllabus. We will discuss this from here.